हाय, नमस्ते। तो आज हम गोपिका के 4th डे हेयर का रिफ्रेश करेंगे। नाउ जिस दिन वॉश करते हैं उस दिन तो बाल टूटते ही हैं, उसके सिवा डेली जब आप कोम करते हैं तो बाल टूटते हैं। सो डेली बालों को कैसे कोम किया जाए कि बिल्कुल भी ना टूटे। नाउ गोपिका ने स्मूथनिंग कराई थी काफ़ी टाइम पहले। ओरिजिनली इनके बाल कर्ली है, राइट। सो अगर रूट्स कर्ली हैं और स्मूथनिंग कराया है, सो कोमिंग पैटर्न विल बी अ लिटिल डिफरेंट देन नॉर्मल स्ट्रेट हेयर, राइट। सो सेक्शन योर हेयर फर्स्ट. Refreshes are something which builds your hair health. Generally हम लोग बालों का डिहाइड्रेशन पे ध्यान ही नहीं देते। सो जब अगर बाल डिहाइड्रेटेड हो, जैसे आज 4th डे है, सो हम रोज वाटर ले रहे हैं और स्प्रे कर रहे हैं सो दैट बाल थोड़े से कम डिहाइड्रेटेड हो। बालों को पानी देना बहुत ज़रूरी है सो दैट उनका मॉइस्चर easily absorb हो. Now keeping her hair type of 2C3A, she is slightly thick in terms of hair and has a high porosity hair because of the smoothing process. So what we did was taking a bit of detangling serum, applying to the ends of it because smoothing किया है. The requirement of detanglement is towards the end. Now once you apply the detangling serum, leave it to dry for few seconds till you do the other side. Now we are doing finger combing right now. We are not touching a comb. When you want to do a dry combing, that time you have to make sure that the hair is perfectly detangled. So before detangling, it's important that you make your hair soft. थोड़ा सा हेयर ग्रोथ सीरम, do a prayer hand, spread it across the ends so that detanglement come हो. Now once you apply, leave it for a couple of minutes, then again spray a little bit of water. If you feel that your hair is oily in texture, then in that case spray normal water. You have to use drinking water and refresh so that it doesn't affect your hair health. The TDS of the water is very important when it comes to hair health. So if the TDS of the water is high, the hair will become much rough. If the water TDS is low, if it is between 100 to 150, it would be easier for you to manage your hair. Now कितने hair fall हुए? 1, 2, right? Now इनको सूखने दे देते हैं. जब तक ये सूखे, you can see how it is. तब तक apply your hair growth spray to the roots. Do not forget a hair growth spray. Hair growth spray will help you in terms of moisturizing your scalp, and it will also help you in terms of maintaining your hair smooth in texture. If you feel that your hair is becoming limp and dry, spray a little bit of hair growth spray on your hair also. You can use a hair growth serum, you can use a hair growth spray, your choice. Now this looks detangled. When it comes to straight hair, if you want to keep it straight, hold your hair from the top, comb it along, brush them slowly to the ends. You need to spend 15 minutes of your time in the morning to brush your hair, otherwise it will become extremely difficult. So brush in the front, brush at the back, brush in the back, brush at the front. Done? Again, section your hair, brush in the end, then gradually brush in the front, brush in the end, absolutely no hair fall, brush in the front. Generally when it's a 4th day hair, we tend to lose a lot of hair because we do not pay
अटेंशन टू हाइड्रेशन ऑफ द हेयर। नाउ काफ़ी लोग कहेंगे आप तो रूट्स टच नहीं कर रहे हो, तो ये रहे, हमने रूट्स भी टच कर लिए। नाउ रूट्स कब टच किए? जब नीचे के बाल कंप्लीटली डिटैंगल्ड हो चुके हैं। ऑल्सो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ लव टू योर हेयर। डू नॉट स्टार्ट ब्रशिंग योर हेयर व्हेन इट इज टैंगल्ड। मेक श्योर टू डिटैंगल इट फर्स्ट, देन ब्रश टू योर हेयर। यू सी द डिफरेंस, है ना? ओके, coming to this side. Now if I comb like this, I'll create a lot of hair breakage. So what am I supposed to do? Section the hair, hold the ends, brush the ends. Use a detangling brush. If you do not want to use this, use the broad detangling brush, any of them. I prefer this because the roots are curly in nature. This will help to make sure that there is no tangle. Brush to the ends. Again, if you feel there is a block, immediately do the ends first. Hold the hair, do the ends first. If it feels more tangled than what it actually should be, either do a finger detangling, especially when it is a straight hair. You can very well detangle it with distribution. Then use a wide tooth comb. This is a very good detangling comb. It helps in terms of distribution of product really very well. Use a wide tooth comb through. Once you feel that it's easy, then comb your hair, then go towards the roots, then see if there is a tangle, immediately stop. Take the wide tooth comb, hold your hair, you need a lot of patience and love when it comes to hair. अब इनके बाल आप देख सकते हैं, इतने बाल कोम करने में हमारे 8 बाल टूटे हैं। टुडे इज 4th डे है। जनरली लास्ट जब 4th डे 5th डे बाल होते हैं तब ज़्यादा टूटते हैं क्योंकि मॉइस्चर बालों से निकल जाता है। इसलिए आपको बालों का रिफ्रेश रेगुलरली करना पड़ेगा। रेगुलरली इन द सेंस एवरी डे एक बार एटलीस्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर ऑफिस जा रहे हैं, हॉस्पिटल आ रहे हैं, अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, सो हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, सो अगर आप कहीं भी आ रहे हैं, आपको पहले बालों का रिफ्रेश करना है, उसके बाद आपको घर से बाहर निकलना है सो दैट बाल डैमेज ना हो। अगर बालों का आप रिफ्रेश इस तरह से नहीं करेंगे तो बाल ज़्यादा टूटेंगे। ड्राई कोमिंग इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर हेयर। इट गिव्स यू स्प्लिट इन, इट गिव्स यू रफ एंड्स, एंड कंडीशनर लगाने से एक ही बार में बालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है। आपका कंडीशनर का रिश्ता 5 मिनट का है और आपके शैम्पू का रिश्ता 5 मिनट का है, जबकि पूरा हफ्ता आप कुछ नहीं करते। सो अगर आप आपके बाल लंबे और सुंदर करना चाहते हैं तो आपको उनको डेली रिफ्रेश करना पड़ेगा सो दैट बाल ना टूटे। 50% of hair care is application and 50% of hair care is your intake of food and water. Now, if your water intake is less, you will also struggle in terms of having good growth. Now, अगर लग रहा है कि बाल उसी लेंथ में है और आपके बालों की लेंथ बढ़ी नहीं रही है, एक ही जगह पे है, make sure that you drink enough water. That's like the first requirement. उसके सिवा check your vitamins levels, but yes, you have to first make sure that your hair health wise, texture wise gets better with a hair growth serum. Hair growth serum is something which is water based. Generally जितने भी मार्केट में आपको hair growth serum मिलेंगे वो सारे के सारे water based हैं. Because they are water based, it becomes
easier for us to get absorbed in the scalp। और ये ऑयली नहीं होता है, बिल्कुल भी फील भी नहीं होगा। चाहे आप कोई भी हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ कर लीजिए, वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा और आपके बाल पूरे दिन सॉफ्ट रहेंगे। अगर आप पूरे दिन बाल खुले रख रहे हैं तो बाल तो सॉफ्ट चाहिए ना। आज मैं ऑयलिंग करने वाली हूँ, इसलिए मैंने बालों का सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर किया है, खुद के बालों का। एंड अगर मुझे आज ऑयलिंग नहीं करना होता तो आई वुड हैव डन अ प्रॉपर फुल हेयर केयर इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग कर्ल एक्टिवेटर, जेल, सीरम, ऑल ऑफ इट। बट सिंस ऑयलिंग रहेगा तो रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अगर आज ऑयलिंग होगी तो मेरा रिफ्रेश तभी होगा जब मेरे बाल ड्राई होंगे। काफ़ी लोग हैं जो आके मुझे पूछते हैं कि रिफ्रेश हम लोगों को ऑयल्ड बालों में करना चाहिए क्या। ऑयल्ड बालों में आप रिफ्रेश करेंगे तो वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। आपको रिफ्रेश ड्राई बालों का करना पड़ता है, मतलब शैम्पू किए हुए बालों का। अगर मान लीजिए आप 5 दिन हो गए हैं, उसके बाद धोने वाले हैं तो, और आपको लगता है कि मैं रिफ्रेश ना करूं, रिफ्रेश करने से मेरे बाल वापस मेंटेन हो जाएंगे, तो आपको सोच लेना चाहिए कि आपको करना क्या है। काफ़ी लोगों को लगता है कि शैम्पू हर 3 दिन में 4 दिन में करना चाहिए, बट अगर आप रेगुलर रिफ्रेश करेंगे, आप 10 दिन तक शैम्पू नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ ऑयलिंग के वक्त आपको सिर्फ ऑयलिंग करनी होती है, ऑयलिंग के साथ आप रिफ्रेश नहीं कर सकते। नाउ इफ यू सी, हर टैंगल इन द फ्रंट इज प्रिटी हाई एंड दिस इज, इट्स नॉट दैट शी इज नॉट यूजिंग deep conditioning mask, it's not that she's not using a conditioner, it's not that she's not using a shampoo, it's because there is no refresh. Refresh helps you in terms of making your hair smooth, maintainable, and it reduces breakage. Hair growth serums are an everyday part of your life. So काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि हेयर ग्रोथ सीरम अगर हम ना लगाएं, क्या हमारे बाल उतनी स्पीड में ग्रो नहीं करेंगे? करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अगर आप अच्छे से पानी पिएंगे तो बाल डेफिनेटली ग्रो करेंगे। बट अगर आप हेयर ग्रोथ सीरम लगाएंगे, पोल्यूशन, डस्ट, सनलाइट, इन सब से काफ़ी ज़्यादा आपको डैमेज फ्री फील होगा। ओके, सारा दिन जिस लेवल पे आप, अब तो वापस हम लोग सब बाहर जाना स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने। अब जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे आपका एक्सपोजर डस्ट का ज़्यादा होगा। एज अ रिजल्ट यू नीड टू अप्लाई अ हेयर ग्रोथ सीरम जस्ट टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ योर रूट्स। नाउ एनी हेयर ग्रोथ सीरम विल डू, नॉट जस्ट व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ, एनी हेयर growth serum will do. Make sure to handle your hair very delicately. Treat your hair like silk. It always needs to start from the bottom. It has to start from the back. Gradually, when all your back hair is done, then and only then touch your front. अगर आपके पास टाइम नहीं है, बाल मत बनाइए, ठीक है? Do not touch your hair अगर आपके पास टाइम नहीं है कोम करने का. So inward, outward, inward, आउटवर्ड. अगर सुबह टाइम नहीं है आपके पास, आपको ऑफिस जाने का रश है, बन बना के चले जाइए प्लीज. ओके, डू नॉट ड्राई कोम योर हेयर, यू विल एंड अप क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ब्रेकेज. ओके, नाउ दिस लुक्स क्वाइट डिटैंगल्ड, सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू कोम. तो इस साइड बात ही करती है, सेक्शन यहाँ पे करती है, ऐसे करती है. ओके, सॉरी, मैं वही सोचूं, मैंने कुछ तो गड़बड़ की. तेरे बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा है. एक मिनट, बाल होने के बाद 8, 9, 10. ओके, 10 टूटे. मूवी 4th डे हेयर इजली टूटे.
10 से ज़्यादा टूटे नहीं हैं। आपका रिक्वायरमेंट है कोमिंग करते वक्त कम बाल टूटना, इसलिए आपको थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा जब आप कोमिंग करें। स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, होल्ड योर हेयर, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। इफ यू फील देयर इज अ knot, create a O, lock your hair, start from the bottom, never from the top. Start from the back, never from the front. Detangling combs, because of the gap, it becomes easier for you to comb through your hair. अब ये जब खुद करेगी थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि खुद के बालों पे हाथ बहुत जल्दी चलता है। जब किसी और के होते हैं तो हाथ बहुत धीरे चलता है। It would be easier for us to manage well. All right. Thank you.